students, welcome to the history class. Today we will discuss last three parts of the chapter Changing Cultural Traditions. First of all, we will discuss about the Copernican revolution. The Christian's notion of a man as a sinner was questioned from an entirely different angle by scientists. The turning point in European science came with the work of Copernicus, a contemporary of Martin Luther. Christians had believed that the earth was a sinful place and the heavy burden of sin made it immobile. The earth stood at the center of the universe around which moved the celestial planets. क्रिश्चियंस की ये धारणा थी कि मनुष्य पापी है और इस पर साइंटिस्ट्स ने एंटायरली डिफरेंट एंगल से आपत्ति की। यूरोपीय साइंस के क्षेत्र में एक टर्निंग पॉइंट मार्टिन लूथर के कंटेम्परेरी कोपरनिकस के काम से आया। क्रिश्चियंस का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ये स्थिर है। पृथ्वी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर सेलेस्टियल प्लैनेट्स घूम रहे हैं। कोपरनिकस asserted that the planets, including the Earth, rotates around the sun. A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to this theory by traditionalist clergymen. For this reason, he did not want his manuscript, The Revolution Ibis, to be printed. On his deathbed, he gave it to his follower, Joachim Ridicus. It took time for people to accept this idea. It was much later, more than half a century later, in fact, that the difference between heaven and earth was bridged through the writings of astronomers like Johannes Kepler and Galileo Galilei. The theory of the earth as part of a sun-centered system was made popular by Kepler's cosmographical mystery, which demonstrated that the planets move around the sun not in circles but in ellipses. Galileo confirmed the notion of the dynamic world in his work The Motion. This revolution in science reached its climax with Isaac Newton's theory of gravitation. कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वे इस बात से डरे हुए थे कि उनकी इस नई खोज से ट्रेडिशनल क्लर्जीमैन यानी धर्म अधिकारी बहुत नाराज होंगे। यही कारण था कि वे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट द रेवोल्यूशनिस्ट एबिस को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वे अपने डेथ बेड पर थे तब उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने फॉलोअर जोशिम रिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने के लिए लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी हाफ सेंचुरी से अधिक समय बीतने पर एस्ट्रोनॉमर जोनस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को खत्म कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल में कोपरनिकस के सन ओरिएंटेड सोलर सिस्टम सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर सर्कल्स में नहीं बल्कि एलिप्सिस मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के ग्रेविटेशन के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छू लिया। Now we will discuss about reading the universe. Galileo once remarked that the Bible that lights the road to heaven does not say much on how the heavens work. The work of these thinkers showed that knowledge, as distinct from belief, was based on observation and experiments. Once these scientists had shown the way, experiments and investigation
into what came to be called physics, chemistry, and biology expanded rapidly. Historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolution. गैलीलियो ने एक बार कहा था कि बाइबल जिस स्वर्ग के मार्ग को आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है इसके बारे में कुछ नहीं कहता। इन थिंकर्स ने हमें बताया कि नॉलेज बिलीफ से हटकर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान को खोज का रास्ता दिखाया वैसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्षेत्र में अनेक एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस होने लगे। हिस्टोरियंस ने मैन और नेचर के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। Consequently, in the minds of skeptics and non-believers, God began to be replaced by nature as the source of creation. Even those who retained their faith in God started talking about a distant God who does not directly regulate the act of living in the material world. Such ideas were popularized through scientific societies that established a new scientific culture in the public domain. The Paris Academy, established in 1670, and the Royal Society in London for the promotion of natural knowledge, formed in 1662, held lectures and conducted experiments for public viewing. परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के सोर्स के रूप में नेचर गॉड का स्थान लेने लगे। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा वे भी इस एक ऐसे डिस्टेंट गॉड की बात करने लगे जो कि मटेरियल वर्ल्ड में अपनी दखल अंदाजी नहीं करता था और ना ही उसे कंट्रोल करता था। इस प्रकार के विचारों को साइंटिफिक सोसाइटीज के माध्यम से पॉपुलर बनाया गया, जिससे पब्लिक क्षेत्र में एक नई साइंटिफिक कल्चर की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक नॉलेज के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों को जानकारी के लिए लेक्चर्स का आयोजन किया और पब्लिक व्यूइंग के लिए एक्सपेरिमेंट्स कराए। नाउ वी कम टू लास्ट पार्ट। Was there a European Renaissance in the 14th century? Let us now reconsider the concept of Renaissance. Can we see this period as marking a sharp break with the past and the rebirth of ideas from Greek and Roman tradition? Was the earlier period a time of darkness? अब हम रेनेसेंस के कंसेप्ट को रिकंसिडर करेंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में पास्ट से शार्प ब्रेक हुआ और ग्रीक और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का रीबर्थ हुआ? क्या इससे पहले के पीरियड यानी 12वीं और 13वीं शताब्दी डार्कनेस यानी अंधकार का समय था? Recent writers like Peter Burke of England have suggested that Burckhardt was exacerbating the sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance, which implies that the Greek and Roman civilizations were reborn at this time, and the scholars and artists of this period substituted the pre-Christian word view of the Christian one. Both arguments were exaggerated. Scholars in earlier centuries had been familiar with Greek and Roman culture, and religion continued to be a very important part of people's life. इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के ये विचार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाले हैं। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के काल के फ़र्कों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने रेनेसेंस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में ये
इस शब्द से ये इम्प्लाइड है कि ग्रीक और रोमन सभ्यताओं का 14th सेंचुरी में रीबर्थ हुआ और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स और कलाकारों में क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू की जगह प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू का प्रचार और प्रसार हुआ। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किए गए थे। पिछली सेंचुरी के विद्वान ग्रीक और रोमन कल्चर से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। To contrast the Renaissance as a period of dynamism and artist creativity and the Middle Ages as a period of gloom and lack of development is an oversimplification. Many elements associated with Renaissance in Italy can be traced back to the 12th and 13th century. It has been suggested by some historians that in the 9th century in France there had been similar literary and artistic blossoming. ये कहना कि रेनेसेंस डायनामिज्म और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का पीरियड था और इसके विपरीत मिडल एजेस ग्लूम का पीरियड था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। इटली में रेनेसेंस से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं सेंचुरी में पाए जा सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ने इसका उल्लेख किया है कि 9th सेंचुरी में फ्रांस में इसी प्रकार के लिटरेरी और आर्टिस्टिक रचनाओं के विचार पैदा हुए थे। The cultural changes in Europe at this time were not shaped only by classical civilization of Rome and Greece. The archaeological and literary recovery of Roman culture did create a great admiration of that civilization. But technologies and skills in Asia had moved far ahead of what the Greeks and Romans had known. Much more of the world had become connected, and the new techniques of navigation had been investigated. The expansion of Islam and Mongol conquest had linked Asia and North Africa with Europe, not politically, but in terms of trade and learning skills. The Europeans learned not just from the Greeks and Romans, but from India, from Arabia, from Iran, from Central Asia and China. These debts were not acknowledged for a long time because when the history of this period started to be written, historians saw it from a European-centered viewpoint. यूरोप में इस समय आए कल्चरल चेंजेस में रोम और ग्रीक की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन कल्चर के आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकवरी में भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभरे, लेकिन एशिया में टेक्नोलॉजी और स्किल्स ग्रीक और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में कनेक्टेड हो चुका था और नेविगेशन की नई टेक्निक्स से दूर दराज के क्षेत्रों की वाटरवेज से यात्रा संभव हो गई थी। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजय ने एशिया और नॉर्थ अफ्रीका को यूरोप के साथ पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि ट्रेड और लर्निंग स्किल्स की नॉलेज को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल ग्रीक और रोमन वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, सेंट्रल एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इस कर्ज को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब इस पीरियड का इतिहास लिखने की प्रोसेस शुरू हुई तब हिस्टोरियंस ने इसके यूरोप सेंटर्ड व्यू पॉइंट को ही सामने रखा। An important change that did happen in this period was that gradually the private and the public spheres of life began to become separate. The public sphere meant the area of government and of formal religion, and private sphere included the family and personal religion. The individual had a private as well as public role.
He was not simply a member of one of three orders, he was also a person in his own right. An artist was not just a member of a guild, he was known for himself. In the 18th century, this sense of the individual would be expressed in a political form in the belief that all individuals had equal political rights. इस काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए उसमें धीरे धीरे प्राइवेट और पब्लिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के पब्लिक स्फेयर का अर्थ एरिया ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्मल रिलीजन से रिलेटेड था और प्राइवेट स्फेयर में परिवार और व्यक्ति का प्राइवेट रिलीजन था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी, प्राइवेट और पब्लिक। वह न केवल थ्री ऑर्डर्स में किसी एक का मेंबर था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति भी था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18th सेंचुरी में व्यक्ति की इस पहचान को पॉलिटिकली रूप में एक्सप्रेस किया गया इस विश्वास के साथ कि हर एक व्यक्ति के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। Another development was that the different regions of Europe started to have their separate sense of identity based on language. Europe, earlier united partly by the Roman Empire and later by Latin and Christianity, was now dissolving into states, each united by common language. इस काल की एक अन्य इम्पॉर्टेंट विशेषता ये थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दी। पहले पार्टली रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लैटिन भाषा और क्रिश्चियनिटी द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण कॉमन लैंग्वेज का होना था। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।